Hello aspirants, I hope you all are doing good and your preparation is going perfectly fine. So this video is for those who are appearing for UPSC prelims on 28th of May 2023 and those aspirants who are facing issue to clear prelims from last 2 to 3 years or 1 or 2 years or 3 or 4 years. I know right now prelims is becoming a major hurdle to cross for this examination as from last few years, UPSC prelims is becoming quite unpredictable in many ways. So for this thing, we need proper strategy by which we can clear this exam. So ये वीडियो है जो वो उन लोगों के लिए है जो लोग बहुत ज़्यादा ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं और दे हैव गुड आंसर राइटिंग स्किल्स बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू clear prelims by marginal marks, by 1 or 2 marks or 4 5 marks. So please watch this video till the end. First of all, you need a good mindset, right? अगर आपका नहीं क्लियर हो रहा है तो you need to introspect why this is happening again and again, right? Don't just dishearten if you have attempts left. And even if you are appearing for this exam for the first time, still you need to take prelims very seriously, right? Because from few years it is becoming very, very unpredictable. They are asking questions from out of nowhere. So in the examination, when you are actually appearing for this exam, students are facing many issues because of this uncertainty that is going around. So let's start. First of all, be very gentle with your approach and make a good strategy, like how you're going to prepare for whole year. Just write it down, right? And first start with your to-do list of single day, to-do list for whole week, then to-do list for whole month, right? And just check that how your preparation is going on. जो मैक्सिमम एस्पिरेंट्स होते हैं उनका इशू क्या होता है, दे डोंट मेक एनी टू डू लिस्ट, दे आर जस्ट प्रिपेयरिंग इन वन गो ओनली, लाइक पहले कोई बुक उठाई वो ख़त्म कर दी, दूसरी उठाई वो ख़त्म कर दी, एंड दे डोंट इवन चेक लाइक उनकी प्रेपरेशन कहाँ तक जा रही है. सो इसके लिए आपको अभी क्या सबसे ज़्यादा फर्स्ट काम आपको क्या करना है, जस्ट पिक वन डायरी and write your to-do list. This is a way, I know this may sound absurd for few people, but this is the practical way to see how your preparation is going on. Right now, after watching this video, just start doing your to-do list for today and just see how much you are performing in a day and see your productivity level. कई लोग क्या होते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं like for 10 to 12 hours, but if you see their productivity, it's only of 1 or 2 hours. So what does this make sense? No, this makes no sense. अगर आप लोग इतना पढ़ रहे हो और उसकी प्रोडक्टिविटी जस्ट 2 आवर्स है तो 10-12 घंटे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, राइट? अगर पढ़ना है तो इस हिसाब से पढ़ो कि जितना भी पढ़ रहे हो एटलीस्ट यू आर प्रोडक्टिव इन दैट टाइम. एंड मैक्सिमम टाइम में क्या होता है कि बच्चे कॉन्टीन्यूटी में पढ़ते रहते हैं एंड दे एंड अप बीइंग एग्जॉस्टेड. जो इस एग्ज़ाम का सबसे बड़ा इशू आ रहा है एस्पिरेंट्स में, उनकी जो इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हैं, क्योंकि वो बस पढ़ ही रहे हैं, दे आर नॉट टेकिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ब्रेक्स. सो we'll discuss this part later, but first let's see how to make a good strategy, right? See, 2023 exam is on 28th of May, so we have already good 10 months, right? Even if you are appearing for the first time, still you will be able to clear if you are going to give your 100%. So start reading newspaper daily. And if you are going to give your first attempt, and I'm not assuming that you are going to get newspaper instantly, because of course it takes time, and those who have already appeared उनके लिए easy हो जाता है. आजकल क्या है, बहुत ज़्यादा easy हो चुका है, थोड़ा मतलब content available है बहुत ज़्यादा YouTube पे, that there are various YouTube channels जो लोग न्यूज़पेपर का
एक्सप्लेन करते हैं डेली, राइट। बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, जैसे ओनली आईएएस हो गया, स्टडी लेवल वीर हो गया, बहुत सारे अच्छे अच्छे हैं। जस्ट गो एंड चेक इट डाउन। जो लोग आपको आपके अकॉर्डिंग सूट कर रहा है उनको फॉलो करके देखिए, आपको थोड़ा बेसिक आइडिया हो जाएगा कि ये न्यूज़ अगर आ रही है, व्हाट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड दिस, क्यों आ रही है, राइट। तो आप थोड़ा फेमिलियर हो जाओगे। और उसके साथ क्या होगा, जब आप ना पिक्टोरियल वे में कोई किसी चीज़ को देखते हो, डेली देख रहे हो ना, तो आपके जो मेमोरी रिटेंशन है वो गुड हो जाता है काफ़ी। एंड सप्लीमेंट इट विद योर फिजिकल न्यूज़पेपर, राइट। अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, वो आपका लुक आउट है। बट इसके साथ आपका थोड़ा क्लैरिटी हो जाएगा। एंड जो लोग पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं, दे ऑलरेडी नो व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड, सो आई एम नॉट गोइंग देयर। एंड उसके साथ क्या है, मैक्सिमम नाउ प्रीलिम्स में इसकी एप्लीकेशन क्या है, इट डजंट मीन कि आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते जा रहे हो, बट आप जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हो तो आपसे क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहे, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है कि अगर आप इतना पढ़ रहे हो और आपसे क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहे। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, यू पीपल आर नॉट रिवाइजिंग प्रॉपरली। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो प्लीज़ बाय सम गुड मंथली मैगजीन्स, जो आजकल बहुत अच्छी अच्छी मिल रही है मार्केट में। अगर किसी को विजन आईएएस कंफर्टेबल है वो ले लो, शून्य आईएएस है वो ले लो, लाइट आईएएस है वो ले लो, बहुत सारे हैं। आप मतलब दे आर जस्ट कवरिंग होल मंथ्स न्यूज़पेपर इन 30 to 40 पेजेस। आई थिंक इट्स गुड टू गो फॉर प्रीलिम्स, क्योंकि हमें इसकी 5 6 बार रिवाइज करना होता है। अगर आप 5 6 बार रिवाइज कर नहीं जा रहे हो एग्जाम में, तो you will definitely be not able to mark right answers in first go। अगर जिसने प्रॉपर प्रैक्टिस करी हुई है, रिवाइज करके गया हुआ है एस्पिरेंट, तो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा ना, वो नॉर्मल एस्पिरेंट से डबल होगा, क्योंकि उसको पता है कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। एंड जो यूपीएससी एग्जाम डालती है वो ऐसे ही नहीं डाल रही है कि वो कुछ रॉकेट साइंस डाल दे, नो। उनके हर क्वेश्चन के पीछे एक रीज़न होता है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स में आया होता है। तो दैट इज़ वाई दे मेक क्वेश्चंस आउट ऑफ दिस इवन इन द हिस्ट्री टॉपिक और जोग्राफी टॉपिक। इंटरनेशनल रिलेशंस तो चलो है ही, ये सब हम न्यूज़पेपर से ही कवर करते हैं, राइट। सो व्हाट आई एम गोइंग टू से इज, आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, जो आपको अपनी एनसीईआरटीज़ को नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना अपनी एनसीईआरटीज़ को। एनसीईआरटीज़ आर द बेस, यू नो। एंड लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी, स्पेक्ट्रम फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री, शंकर आईएएस फॉर एनवायरनमेंट, रमेश सिंह और मृणाल नोट्स फॉर इकोनॉमी। ठीक है, ये तो बेसिक बेसिक आपको एटलीस्ट कवर करना ही है। एंड एनसीईआरटीज़ कवर करनी है, न्यूज़पेपर कवर करना है, और मंथली मैगजीन के साथ उसको रिवाइज करना है। एंड ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द ईयर we'll get इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, राइट। तो उसको भी आपको प्रॉपरली कवर करना है। एंड आपको अपनी स्ट्रैटेजी लिखनी है कि मेरे को इस मंथ में क्या क्या कवर करना है, मेरे को कितना कितना रिवाइज करना है, बुक्स के लिए भी, करंट अफेयर्स के लिए भी। इसके साथ व्हाट यू विल गेट इज, यू विल गेट इमेंस कॉन्फिडेंस, राइट। मैक्सिमम एस्पिरेंट्स क्या होते हैं, वो जो एंड टाइम होता है वहाँ पे जाके पैनिक कर जाते हैं। they don't fail this examination because of lack of study or what, they just fail this examination because of lack of motivation at the end time। अगर कोई एस्पिरेंट कंसिस्टेंटली काम कर रहा है अपना, तो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा ना एग्जाम तक, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा। और अगर जो एस्पिरेंट क्या कर रहा है, वो पढ़ भी रहा है 10 10 12 12 घंटे, बट उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, तो उसके लिए ये थोड़ा एंड में आकर जो कॉन्फिडेंस है वो शैटर हो जाता है। तो फॉर दिस थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू मेक गुड हैबिट्स, सो दैट कि आपका कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन मेंटेन रहे। आपको कंसिस्टेंट तो रहना ही पड़ेगा। अगर आप न्यूज़पेपर स्किप करोगे तो आपको ऑब्वियसली नेक्स्ट डे तो कवर करना ही है, सो इट्स बेटर टू गेट कंसिस्टेंट, राइट। एंड complete your NCRTs in 2 months. I think 2 months are enough, and make your short notes out of this, and you can take good amount of time according to your own level कि आप कितना टाइम चाहिए आपको ये प्रॉपर स्टैंडर्ड बुक्स को कवर करने के लिए। एंड
make proper short notes out of this. And most importantly, those students who prepare for this exam, if they are preparing in certain way कि वो लोग मेंस के लिए आंसर राइटिंग भी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको एक एज है। उनके पास ये तो एक एज रहेगा ही कि उनका जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो नॉर्मल एस्पिरेंट से ज़्यादा होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी डेली आंसर राइटिंग कर रहे हैं एंड उनको उस एग्ज़ाम की डेप्थ पता चल चुकी है। अगर इफ़ यू आर नॉट डूइंग आंसर राइटिंग ना, ये आपको सिर्फ मेंस के लिए लॉस नहीं है, आपको प्रीलिम्स के लिए भी लॉस है। तो फर्स्ट, of course, it's not for a new aspirants, because for new aspirants it is not certainly possible to start answer writing initially. But with the passage of time, start writing for half page only on any topic. It's not that you have to cover the syllabus and all that, then start answer writing. Just pick any random topic that what you have done today, right? तो पेपर उठाओ, लिखो क्या करा है, इसके साथ आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होनी स्टार्ट हो जाएगी। एंड देन कंप्लीट योर एनी टॉपिक, और उसके लिए उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो और आंसर लिखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, चलो लेट्स कम टू आवर टॉपिक अगेन। सो you make your own strategy and please focus on current affair immensely, NCRTs, standard book list, and revise it thoroughly, right? And make your to-do list. Now, what's gonna make difference for aspirants? First of all, practice. जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप कंफर्टेबल रहोगे। अगर आप अपनी सिलेबस को 5 या 6 बार रिवाइज कर रहे हो, और जो आप प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट लगा रहे हो, एंड आप अपने शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो जैसे मई में एग्ज़ाम है ना हमारा 28th ऑफ मई, तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स फ्रॉम मार्च, अप्रैल एंड मई। मतलब पूरी की पूरी प्रेपरेशन आपको प्रीलिम्स ओरिएंटेड ही रखनी है फ्रॉम 3 मंथ्स, राइट? बिकॉज इसके साथ क्या होगा, आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। एंड जब आप एंड टाइम में एग्ज़ाम में अपीयर होने जाओगे ना, तो आपको आपका कॉन्फिडेंस ही है जो मेक और ब्रेक करेगा। ऐसे नहीं है कि सिर्फ जो आपने पढ़ा, बिकॉज पढ़ते तो सब सेम है, न्यूज़पेपर तो सबके लिए सेम आ रहा है, तो डिफरेंस कहाँ रह रहा है? डिफरेंस यही पे है ना कि उनकी कंसिस्टेंसी कहाँ पे है और उनकी जो स्ट्रेटजी है वो कैसी है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, किसी की तरफ देखकर अपनी स्ट्रेटजी को मत बनाना, क्योंकि सबके सर्कमस्टेंसेस अलग होते हैं, आपके अलग हैं, बाकियों के अलग हैं, तो आपकी स्ट्रेटजी सेम वे में काम कैसे करेगी? टेक मोटिवेशन, बट प्लीज क्रिएट योर ओन स्ट्रेटजी। दिस इज गोइंग टू वर्क फॉर यू। अगर आप किसी वीडियोस को देख रहे हो कि इसके इतने घंटे पढ़ता था, ऐसे करता था, वैसे करता था, नो, उनकी फेवरेबल कंडीशंस और होंगी, उनके सर्कमस्टेंसेस और होंगे, आपके और हैं, तो डेफिनेटली ना आपके जो स्ट्रेटजी है उसको इस हिसाब से बनाओ। ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दो कि नहीं मेरे को इस टाइम पे बस इतना ही करना है, ये करना, नो, इट्स certainly not possible, because life is full of uncertainties as well. Let's be very practical. तो अपना मतलब जो आपको स्ट्रैटेजी बनानी है इस हिसाब से बनाओ कि अगर इफ इन केस कुछ ऊपर नीचे हो भी रहा है तो आप उसको मैनेज कर पाओ, राइट? सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, from this slide what we are getting is, please revise for at least 5 to 6 times. Only because of lack of revision you are not able to solve paper. And please practice at least 30 mock test. पहले से देना स्टार्ट कर दो, ऐसे नहीं है कि 3 महीने आए तब स्टार्ट करो, नो। जब आप कर रहे हो, जैसे दिसंबर तक अपने करंट के जैन टू दिसंबर अपने मॉक्स दे दो, सो दैट आपको इतना कॉन्फिडेंस होगा कि दैट यू हैव कवर्ड 12 मंथ्स करंट अफेयर्स। एंड अपने शॉर्ट नोट्स खुद से बनाओ, देखो कि आप उसको कितनी इजीली रिवाइज कर पा रहे हो। ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम पढ़ने पे तो नहीं होगा ना, 3-4 बार पढ़ोगे, देन मेक शॉर्ट नोट्स आउट ऑफ इट and then give your mocks. And most importantly, what you need is good mindset, good health. See, demotivation is a part of this examination, क्योंकि ये पेपर ही ऐसा है कि जहाँ पे आपका सब कुछ टेस्ट हो रहा है। आपकी मेंटल कैपेसिटी कितनी है,
ठीक है, वो तो होगी ही होगी, बिकॉज वी एज अ ह्यूमंस आर प्रोन टू comparisons. We compare everything, right? So ये तो होता है, सेल्फ डाउट्स होते हैं, बट प्लीज बी कॉन्फिडेंट. आपको अपने खुद से ज्यादा, आपके अलावा किसी को नहीं पता है व्हाट डू यू एक्चुअली डिजर्व एंड व्हाट इज योर वर्थ, यू नो. प्लीज डिसाइड योर सेल्फ वर्थ. और अपने आप को कंसिस्टेंटली पढ़ो, मेहनत करो, सिंसेरिटी के साथ करो. ऐसे नहीं है कि किसी को दिखाने के लिए यू आर जस्ट डूइंग स्टडी फॉर 10 hours 12 hours. नो यार, नो, दिस इज नॉट द टाइम. अगर पढ़ना है तो खुद के लिए करो कि यस, आज मैंने इतनी आवर्स प्रोडक्टिविटी दी है. बेशक 2 आवर पढ़ो, 3 या 4 घंटे पढ़ो, बस उसमें प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, राइट? उसका कुछ मतलब होना चाहिए. एंड अगर आप ना प्रोडक्टिविटी अपनी कैलकुलेट करने लग गए तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा. उसके अगर आप ना अपने टारगेट्स को कंप्लीट कर रहे हो ना, आपकी लाइफ में कभी एंग्जाइटी डिप्रेशन नहीं आ सकता. अगर जब आपके टारगेट्स मिसमैच होते हैं ना, कंप्लीट नहीं होते, देन प्रॉब्लम्स लाइक एंग्जाइटी अकर. तो उसे हमें पहले ही ख़त्म कर देना है कि हमें अपनी टू डू लिस्ट बनाकर रखनी है कि हमें इस मंथ में क्या करना है, इस वीक में क्या करना है. एंड आपका रिजल्ट जैसा आपका डिज़ायर्ड रिजल्ट होता है ना, आपको मिलेगा, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डन ऑल द थिंग्स जो कि चाहिए इस एग्ज़ाम में. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, बिलीव इन योर सेल्फ. एंड नाउ एज वी सी, ट्रेंड ऑफ दिस एग्ज़ाम इज चेंजिंग, राइट? सो बहुत सारे टेस्ट सीरीज हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं. आई एम नॉट गोइंग टू नेम एनी. यू पीपल आर ऑलरेडी इंटेलिजेंट इनफ कि आपको क्या डिसाइड करना है. बट माई ओनली एडवाइस इज, बिफोर गोइंग फॉर एनी test series, please go through previous year questions, because previous year questions are so important these days, so important that you're going to get 10 to 20 marks out of this only indirectly in examination. Please go through all the previous years of, if you can, if it is possible for you, go through from last 10 years, 20 years, 25 years, it's all up to you, but please go through प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. बिकॉज आपको पैटर्न पता चल जाएगा. जब किसी एग्जाम को क्लियर करने के लिए उसका पैटर्न जानना बहुत ज़रूरी है. बहुत सारे एस्पिरेंट्स को उसका 5 साल के बाद भी पैटर्न ही समझ में, वो इतना ज़्यादा अपने टाइम देते हैं पढ़ने में, दे नो एवरीथिंग, पर स्टिल उनको पैटर्न नहीं पता होता. तो प्लीज़ ऑब्जर्व द पैटर्न थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. पहले देखिए कि लास्ट ईयर में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, उससे लास्ट ईयर में एटलीस्ट 10 years का तो आपने देखा होना चाहिए. अगर आपने 10 साल का देख लिया ना, देन यू आर सॉर्टेड. आई मीन सॉर्टेड. फ्रॉम लास्ट 10 year क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चन आए हैं पेपर में, आपके दोज क्वेश्चंस शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स. बिकॉज अगर 10 years का आपके होगा ना, आपको बहुत ज़्यादा टॉपिक्स तो ऑलरेडी कवर्ड ही हो जाएंगे आपके. तो आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. और जो आपका रियल एग्जामिनेशन होगा उसमें तो 10-20 मार्क्स इसमें से ही आ जाएंगे आपके, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली. इतने क्वेश्चन थोड़ी ना होंगे यूपीएससी के पास कि वो हर साल इतने ज़्यादा एक्सेप्शनल क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं. कुछ तो रिपीट हो रहा है ना, टॉपिक तो हो रहा है ना. अगर कुछ पहले देखो कि जैसे ये देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, under the Indian Constitution, the concentration of wealth violates. So this question is of polity, right? And I consider this question as very basic question. अगर किसी ने अच्छे से प्रॉपर बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हुआ है, अगर लक्ष्मीकांत के फर्स्ट 10 चैप्टर्स ही पढ़े हैं ना, देन यू आर गुड टू. ठीक है. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम पॉलिटी. सो ये आई फील दिस क्वेश्चन, ऑप्शंस ऑफ दिस क्वेश्चन आर क्वाइट कंफ्यूजिंग, राइट? तो इसके लिए आपको थोड़ी कॉमन सेंस की भी ज़रूरत है. ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 Jan 1950. तो ये क्वेश्चन देखो कितना ज़्यादा बेसिक है कि इसमें अगर किसी को प्रियम्बल के बारे में पता है कि प्रियम्बल में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो उसके लिए तो ये 2 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है. And next we have again question of polity. कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स, ये भी अगर आप फर्स्ट 10 चैप्टर्स ऑफ लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो ना, आपके आधे क्वेश्चन तो उसमें सॉल्व हो रहे हैं. देन वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम करंट अफेयर्स कि ये जो टर्म्स हैं
वो किसके साथ एसोसिएटेड हैं, तो ये डेफिनेटली ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं, तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है ये अवार्ड्स का क्वेश्चन है, ये भी करंट अफेयर्स का है क्योंकि उस टाइम पे अवार्ड्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे। एंड सो आपको इस हिसाब से पढ़ने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कि आपका टॉपिक कवर हो जाए। जैसे अभी आपका जो एग्जाम गए हैं लास्ट, उसमें से देखो कि किस में कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स है जो रेपिटेटिव नेचर के हैं, ठीक है। जस्ट जॉट इट डाउन, लिखो, देखो, समझो, उस टॉपिक को क्लियर कर दो, खत्म करो उसका काम, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वी हैव सी सैट, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट्स फेल हो रहे हैं, बिकॉज मैक्सिमम लोग तो GS1 में पास हो रहे हैं, वो किस में जा रहे हैं, उनका किस चीज़ की वजह से प्रीलिम्स रुक रहा है, सी सैट, विच इज़ मैक्सिमम, इसमें तो आपको इतने एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है इस टाइम पे, बिकॉज जो सी सेट है वो भी बहुत ज़्यादा अनकन्वेंशनल हो गया है पिछले आई थिंक 2 to 4 years। पहले सी सेट था क्वाइट ईजी होता था, मतलब डूएबल होता था। अभी के टाइम पे क्या है, इवन दोज हु आर इंजीनियर्स स्टिल दे आर नॉट एबल टू क्लियर। सो सोचो बाकी नॉर्मल लोगों का क्या होगा। तो इसके लिए क्या है कि आपको ऑफकोर्स अपनी न्यूज़पेपर तो आप कर ही रहे हो, ठीक है, तो आपके इंग्लिश उसके साथ हो जाएगा, बट स्टिल यू नीड प्रैक्टिस, राइट। ऐसे नहीं है कि न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, उसकी इम्प्लीमेंटेशन पता होना चाहिए ना। तो आपको इसके साथ क्या है, आपको प्रॉपरली प्रैक्टिस करनी है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के लिए। इसके लिए भी यू नीड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, राइट। एंड क्वांट के वो टॉपिक्स हैं ही, मतलब जो हर साल आते हैं, तो आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी है। लॉजिकल रीजनिंग तो आई फील सबके साथ, मतलब सभी फेमिलियर होते हैं, हो जाता है। क्वांट ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, लॉजिकल कर लेते हैं बच्चे, बट स्टिल वी नीड 27 क्वेश्चंस करेक्ट। अगर 27 क्वेश्चन करेक्ट करने हैं, क्योंकि इसमें तो नेगेटिव मार्किंग भी है, तो एटलीस्ट 50 क्वेश्चन तो करने चाहिए ना। अगर 50 क्वेश्चन हम कर रहे हैं तभी वी आर इन द सेफ जोन, 50 नहीं तो 45 एटलीस्ट, है ना। इसके लिए आपको क्या है, एटलीस्ट 6 मंथ्स की प्रैक्टिस तो कर लो यार, बिकॉज अभी का जो सी सेट चल रहा है वो बहुत ज़्यादा अनकन्वेंशनल है, बहुत ज़्यादा बच्चे जा रहे हैं 1 मार्क्स से, 2 मार्क्स से, दैट्स वेरी सैड। एंड ऊपर से पूरा का पूरा साल खराब हो रहा है। सो इट्स बेटर टू प्रिपेयर सी सेट साइड बाय साइड, राइट। उसके बाद में रिग्रेट करने से अच्छा है कि अभी कंप्लीट कर लो। एंड बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस हैं, अवेलेबल हैं, कि जो आपका क्वांट एंड लॉजिकल को स्ट्रॉन्ग कर देंगे। डेली यार एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, 2 कर लो, 5 कर लो। 5 अगर करोगे तो देखो आपका कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। एंड टाइम में अगर कोई लास्ट 1 मंथ में कर रहा है, कोई कोई 1 वीक में कर रहा है, तो कैसे होगा क्लियर, राइट। बहुत ज़्यादा कंपटीशन है ऑलरेडी। इससे अच्छा है कि आप डेली के डेली 5 क्वेश्चन कर लो मिनिमम। एक टॉपिक उठाओ, कंप्लीट करो, 5 क्वेश्चन डेली करो, इतनी प्रैक्टिस करो कि आपका सी सेट में तो 100 मार्क्स ही आ जाएं। 100 नहीं तो एटलीस्ट 80 तो आ जाएं, कि क्लियर हो, सेफ जोन में हो, है ना। इसकी वजह से पेपर तो नहीं रुक रहा। सो ये सब डुएबल है, ऐसे नहीं है कि कुछ भी हम कर नहीं सकते। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। इतना इतना भी डरने की ज़रूरत नहीं है, ऑफ कोर्स प्रैक्टिस करनी है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अभी हमने GS भी कवर कर लिया, सी सेट भी कवर कर लिया। सबसे ज़्यादा जो इशू है एस्पिरेंट्स का, वो है एंग्जाइटी। तो ये नॉर्मल होता ही है जब हम किसी इतने बड़े एग्ज़ाम में अपियर हो रहे हैं, इट हैपन्स। बट स्टिल हमें अपनी मेंटल हेल्थ को मेंटेन तो करना है ना। इसके लिए स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन, और indulge yourself in any sort of physical activity like running, skipping, jumping, whatsoever you like। अब क्योंकि इसके साथ क्या होगा, आपका मूड है जो वो स्टेबलाइज होता रहेगा। ऐसे नहीं है कि आपको ऑल ऑफ अ सडन कोई हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आपका टाइम भी तो वेस्ट हो रहा है ना। एंड अगर आपका टाइम ही वेस्ट हो गया तो फिर उसका तो कोई मतलब नहीं है। तो एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने आप के लिए पॉजिटिव रहो। यस, आई विल क्लियर दिस एग्जाम, ये होना चाहिए। चाहे कोई और आपको बोल भी रहा है ना कि नहीं तुमसे नहीं होगा, कुछ आंसर देने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद को पता होना चाहिए। अगर आप जेन्युइनली हार्ड वर्क कर रहे हो ना, तो आपको ये एग्ज़ाम क्लियर होने से कोई रोक ही नहीं सकता। अगर आपकी विलिंगनेस इतनी स्ट्रांग है ना, एंड अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है, जस्ट इग्नोर इट लाइक अ बॉस एंड शट द नॉइस, बिकॉज दिस
exam demands your 100% input and your firm belief in yourself. I hope आपको इस वीडियो से हेल्प हुई होगी. So next video will discuss many other topics जिसमें बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट्स को इशू आता है. I hope you like it. Please like, comment and share. And if you like this video, then and if you have any queries, then you can comment it down. So this is all for today's video. Thank you so much. Bye.